Hello everyone, this is Pranav and today I am welcoming you to a very special podcast. Joining with me is Rakhi ma'am. She's an astrologer by the profession, and that is Deepak sir. You know him very well as you have seen our reels, and we are discussing different facts on our Instagram channel. So today's podcast is based for the people who are looking for Rashi Ratna, their consultation and how pricing and everything varies. So ma'am, basically while studying for this podcast, while I was preparing everything and I was studying about various gemstones, मेरे को एक फैक्ट पता चला विच इज मतलब बड़ा कॉमन है. हम ये देखते हैं अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों में कि फॉर द ज्वेलरी द पीपल हु आर वेयरिंग दिस ज्वेलरी इफ दे आर गोइंग फॉर एनी एक्सेसरी कैन इट बी रिंग्स और द पेंडेंट्स, तो उसमें जो वो लोग नग लगाते हैं या रत्न लगाते हैं, आर दोज नग्स हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? So astrologically, gems relate किए गए हैं planets से. So there are 9 planets और उन 9 planets को relevant gem दिया गया. So for example, so we'll start with Monday. सोमवार का दिन दिया गया चंद्रदेव को. Moon has been assigned a stone called pearl, which is we all know that pearl उसमें associate होता है. उसका जो substitute है, they can also wear a moonstone, है ना? And even sphatic. So the lobby of gems is precious and semi-precious. So this is how I'll explain you for the others. So following Monday is Tuesday. मंगलवार का दिन गया है ग्रह मंगल को, which is the planet Mars. Now Mars has been given a gem called red coral. हिंदी में हम इसे मूंगा भी बोलते हैं. This is a very popular stone and is often worn by people, you know, especially people who are Scorpio and Aries. So all these things can be checked. आजकल तो इंटरनेट पे there बहुत free sites है जहाँ पे आप अपना details डाल के check कर सकते हो. But then that will only give you vague idea, basic idea. जब आप gem धारण करते हो तो उसमें आपको specifically अपना assessment कराना चाहिए. बुधवार को जो planet दिया गया है वो है बुध, which is Mercury. Mercury का जो gem है that is emerald है, and then a semi precious stone like an onyx can be worn. All right. And likewise when we move to Thursday, which is Dev Guru Brihaspati, Jupiter is the planet. उनका gem है yellow sapphire, and then commonly semi precious gem is sunella. All right. Or yellow topaz. Right. And then eventually we come to Friday, which is the day is given to Venus. Sure. And Shukra का जो रत्न है वो diamond. All right. Diamond and इसका जो substitute gem होता है वो या तो zircon होता है या opal. अच्छा ठीक है. Then comes our favorite, which is Saturday. शनि महाराज को ये दिन गया है, which is the planet Saturn. And इनका जो gem बनता है वो है नीलम. Very popular, much dreaded, expensive. And also इसका जो substitute है वो नीला, amethyst. These are popular semi-precious gems. And precious and semi-precious में difference ये होता है, when you buy a precious gem, उनका longevity better होता है, clarity बहुत अच्छा होता है. And it is believed that you can wear a precious gem for 5 to 7 years. Right. 5 to 7 years में आपको change कर देना चाहिए, because these gems are magnets, as I explained. Just like a battery, just like these are color magnets. All right. And these planets are sitting away in the in somewhere in the universe. But then these planets attract the energies, the rays of that particular planet. इसलिए हम gems में. All right. So ma'am, like as you told me कि जो precious gemstone है, it has a lifespan of like 5 to 7 years. Just like that, जो semi precious stones होते हैं उनको अगर मैं consider करूँ तो like they are somehow a substitute of the main gem, right? तो उनका जो lifespan होता है, जो उनकी period होता है of like the functional period होता है, वो भी थोड़ा कम होता है. 1.5 year, 2 years max उसमें. And then आप जब semi precious पहनते हो तो आपको उसका weight भी ज़्यादा लेना पड़ता है. अच्छा, that is रत्ती. Yeah, the weight will be higher because otherwise उसके effects नहीं आएंगे. ठीक है. So I think while I was talking I missed on Sunday. Yes. So Sunday is Ravi, सूर्य भगवान को दिया गया है. उनका जो gem है that is called माणिक. Ruby. अच्छा, ruby. Yeah, and the substitute is red topaz. All right. So हमें 7 days का हाइलाइट 8 days का पता चल गया है कि किस दिन कौन सा नग किस ग्रह किस प्लैनेट से एसोसिएटेड है. जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू जस्ट हैव शेयर्ड विद मी. So as per the longevity, as per the functional time period of semi-precious and precious stones,
जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे लाइक out of the blue moons, out of their own understanding on Google and their own research about themselves, they just go for they just go to a jewelry store, they buy a nug and start wearing them, irrespective of the rattis required by them or suggestions given to them based on the professional advice. So is it necessary to take professional advice while going for these Rashi Ratna? Indeed, I would highly recommend that you should take a proper advice, because you'll anyways invest your money. Exactly. And then you choose basis your pocket. But when you have the right guidance, just like you go to a doctor and then get a prescribed medicine and then you buy, and then you see good effects, right? Otherwise, over the counter तो आप कुछ भी लेके खा लो, then it will give you some temporary effects, and then you're kind of not satisfied with it. So when you consult, जब आप एक ज्योतिष को आप कंसल्ट करते हैं, तो वो आपकी पूरी कुंडली को असेस करके और तब आपको बताता है कि आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा। क्योंकि रत्न खाली हम लग्न से ही नहीं देखते, लग्न का पंचम भाव और नवम भाव, ये भी उसका भी आप जेम पहन सकते हो, आप अपने दशा का भी जेम पहन सकते हो, डिपेंडिंग इज इट फेवरेबल और नॉट फेवरेबल। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि जब भी आप प्रेशियस या सेमी प्रेशियस जेम पहनते हैं, देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। ऑलराइट मैम, सो बेसिकली अगर मैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, फॉर एग्जांपल यू इनफैक्ट, तो अगर मैं आपसे सजेशन लेता हूँ कि मैम मेरे को मतलब बेस्ड ऑन माय बर्थ चार्ट एंड एवरीथिंग, तो उसमें आप मेरे को एक सजेस्ट करेंगे ना, मैं उसको वेयर करूँगा, तो ये जो मेरा राशि रत्न होगा, ये मेरे पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एवरीथिंग, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मेरी लाइफ में? डेफिनेटली आएगा, डिपेंडिंग कि आप उस रत्न को, उस ऑब्वियसली रत्न तो आपको देख के ही देगा एस्ट्रोलॉजर कि आपको क्या सूट करेगा। It will definitely improvise the manifestations in your life. Alright, so all over energy and aura, it will be enhanced based on what I'm wearing. Yeah, it will definitely give us. और जैसे ही आप कोई रत्न धारण करते हैं, depending आप क्या रत्न धारण करते हैं, it can be another subject altogether. The gem will give its effects on. Alright, like immediate. हाँ, immediate. So is there any particular ritual like to एकदम मैग्नीफाई और एनहांस द डिविनिटी दैट द नग इज प्रोवाइडिंग, तो इसमें कुछ स्पेशल रिचुअल होता है जो फॉलो करना पड़ता है उसको पहनने से पहले? एग्जैक्टली, इंडीड वी मस्ट डू दैट। यू नो, अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स माइट क्वेश्चन कि यार ये क्या है, हम क्यों ही कर रहे हैं, क्यों दिया बत्ती दिखा रहे हैं, व्हाई आर वी गेटिंग अप इन द दे कंसीडर इट क्रिंज। Yeah, because they feel it's strange, it has no significance, but it is not like that. It is very simple. When you are expecting the planet to give you good results in your life, and that planet is the Lord, he's the master of that gem. तो आप जाके उस मास्टर को खुश करोगे ना, you say hello, good morning, it's very nice to be meeting you, I expect that we exchange good energies. So आप उस मास्टर को, उस ओनर को आप बिल्कुल भी ग्रीट नहीं करोगे और बस ऐसे ही जेम पहन के एक्सपेक्ट करोगे that I'm going to get good results. It will not work. सही बात। So ritual होना जरूरी है, उसका दान होता है, उसका तप होता है, उसका पूरा एक प्रोसीजर। तो आप उस तरीके से पूरा रिचुअल करके जब धारण करोगे, तो you will definitely see good results. So दीपक सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अब जैसे हमारे जो प्यारे विजिटर्स हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई कि हाउ टू वेयर एंड व्हाट टू वेयर एंड व्हेन टू वेयर, राइट? हमें किसकी गाइडेंस लेनी है, क्यों ज़रूरी है, सब कुछ इन्हें इनसाइट पता चल गया है। बट जो मेजर कन्फ्यूजन है मार्केट में वो ये है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स हैं, बहुत सारे प्रॉमिसिंग ज्वेलरी स्टोर्स हैं। तो at BD Agrawal Jewellers and at Mohit Agrawal Jewellers or both of the stores, the visitors that are coming, उनका जो मेजर क्वेश्चन होता है that is for the quality, that is for the jewelry perspective and how enhanced and purity that we are offering to them. तो ये क्वेश्चंस आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उनके? देखो, जो भी कस्टमर्स को किसी भी तरीके का राशि रत्न चाहिए होता है, चाहे वो प्रेशियस हो चाहे वो सेमी प्रेशियस हो, सारा का सारा हमारे पास सर्टिफाइड रखा होता है। और हम बेसिकली जब भी परचेज करते हैं तो हम लोग ये चीज इंश्योर करते हैं कि किसी भी स्टोन में मतलब किसी भी तरीके का कोई भी मार्किंग ना हो जिससे कस्टमर को थोड़ा सा लगे यस एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी निकले उसमें। और ये सारे के सारे जितने भी स्टोन होते हैं वो सारे गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड ही होते हैं। अच्छा, तो अगर कोई हमारे यहाँ से परचेज कर रहा है तो वी आर प्रोवाइडिंग देम द सर्टिफिकेट ऑफ दैट राशि रत्न पर्टिकुलर स्टोन। यस। अच्छा, तो अच्छा कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल द डायमंड इटसेल्फ, तो उसमें क्या होता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स, नेचुरल डायमंड्स, दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता होगा मैम, राइट?
तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि इज इट लैब ग्रोन और इज इट नेचुरल, तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखो, अर्थ स्टोन और एक लैब ग्रोन दोनों में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे अभी तक मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा ज्वेलर या फिर कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है जो आई टू आई देख के बता दे कि वो लैब ग्रोन है या नेचुरल है। उसके लिए डेडिकेटेड स्पेसिफिक मशीन से होती है जो बेसिकली डिटेक्ट करती है कि वो अर्थ स्टोन है या फिर वो मैनमेड स्टोन है। ठीक है। और बेसिकली जब भी हम कोई भी स्टोन देते हैं किसी भी प्लांटेज को, तो हम उसको ना बेसिकली जो गवर्नमेंटली ऑथराइज होता है, मेन इंपॉर्टेंटली होता है ऑथराइज लैब सर्टिफाइड होने चाहिए, उसी के थ्रू ही हम उनको टेस्टिंग करवाते हैं। अच्छा। जिसके थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलता है जो ये बताता है कि ये नेचुरल स्टोन है। अच्छा, तो मतलब वो भी इंश्योर करता है प्रॉपर्ली। अच्छा, तो द इंश्योरेंस, दिस assurance of the quality of the diamond yes. is based on the certificate that we are providing. Yes. Right. उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि वो लैब ग्रोन है या बेसिकली अर्थ स्टोन है, नेचुरल स्टोन है। अब जैसे कुछ हमारे, आपको पता होगा, आप डील करते हैं डेली कस्टमर से, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइसिंग और इन सब चीजों में गाइडेंस चाहिए होती है कि जैसे रत्तीस तो ऑब्वियसली मैम विल टेल, राइट, बेस्ड ऑन दैट उनका जो बिल्ड कॉस्ट आ रहा है, जो मटेरियल यूज करना है, ओवरऑल क्या कॉस्ट आ रही है, तो इसमें आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं? देखो, बिना उनके पॉकेट के हम लोग नहीं सेल कर सकते। देखो, हमारे पास हर तरीके की रेंज होती है, स्टार्टिंग से लेके एंड, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर क्या उनको रेंज चाहिए है। गोल्ड में बनवाना है, सिल्वर में बनवाना है, उसके लिए भी बेसिकली देखो आजकल गोल्ड में भी हॉलमार्क सर्टिफिकेट्स होते हैं प्रॉपर्ली, तो वो भी गोल्ड भी पूरा सर्टिफाइड होता है। मतलब आप चाहे जेमस्टोन ले लो चाहे आप गोल्ड ले लो, सारा का सारा आपको सर्टिफाइड मिलेगा। बाकी रेंज आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास सारे रेंज अवेलेबिलिटी होती है। ऑलराइट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू वेरी हाई, मतलब उसमें तो कोई ऐसा रेंज ही नहीं है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ 100 रुपीज से भी कोई स्टोन स्टार्ट होता है, 50 रुपीज से भी कोई स्टोन स्टार्ट होता है, अच्छा, बट गोज बियॉन्ड लाइक 10 लाख रुपीस पर रत्ती आल्सो। I remember that ring, that was very yes, that लेकिन was, एक रिंग थी मेरे पास जो आपने कवर नहीं करी, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में गई है क्योंकि उनको भी बहुत जल्दी चाहिए थी। वो बेसिकली 10 लाख रुपीस पर रत्ती, 10 लाख रुपीस पर रत्ती, यस, कॉस्ट करता है। बाप। सो देयर आर, मतलब स्टोन जैसे ऐसे हैं जिनकी कोई वो नहीं है, you पर cannot, डिपेंड करता है कस्टमर के उस पे क्या उनको चाहिए है। ठीक है। सो जैसा कि आप लोगों ने इस पॉडकास्ट में सुना, द वे वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट राशि रत्न एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स, सर ने हमें गाइड करा बेस्ड ऑन द प्राइसिंग एंड हाउ क्वालिटी इज एश्योर्ड टू यू, हाउ वी आर प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड जेम्स टू यू। मैम ने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा कि विच डे इज एसोसिएटेड विद विच प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद विच नग। सो अगर आप भी आज अपने राशि रत्न की कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो मैम इज देयर फॉर यू। अगर आपको भी एक ट्रस्टेड ज्वेलरी पार्टनर चाहिए जहाँ से आप अपने राशि रत्न को सोर्स कर पाए, दैट टू विद द सर्टिफिकेट, तो मोहित अग्रवाल ज्वेलर्स एंड बीडी अग्रवाल ज्वेलर्स बोथ आर लाइव इन नोएडा। थैंक यू so much for watching this video and stay tuned to us because such episodes, such podcasts will keep on coming up to our channel. Thank you so much.